ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਫਰ ਆ ਇਹ ਔਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਿਟਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। Second point, must create legal relationship. A valid offer creates a legal relationship, which means there must be an intention of the offerer to work under legal obligation or to be legally bound by law, not under social obligation. ਵੈਲਿਡ ਆਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੀਗਲੀ ਫਾਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। For example, X says to Y, if he passed the exam, he will get a new video game. Y passes the exam, asked his father to give him video game, as he had promised to Y. Here, X is not legally bound as the offer does not create any legal obligation against X. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या बोला है उन्होंने, X says to Y, X ने Y को कहा अगर वो अपना एग्ज़ाम पास करेगा तो उसको न्यू वीडियो गेम मिलेगी। ठीक है, X जो है उसमें उसका फादर है, वो Y है, वो चाइल्ड है। Y पासिस दी एग्ज़ाम, बच्चे ने एग्ज़ाम पास कर लिया और अपने फादर को बोला अब उसको वीडियो गेम ला के दो जैसे आपने प्रॉमिस किया था। Here, X is not legally bound as the offer does not create any legal obligation against X. ये जो प्रॉमिस किया था वो लीगली तो नहीं था, वो तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था भी अगर तुम पास करोगे तो तुझे वीडियो गेम ला के दूँगा। तो वो इस केस में कोई भी एक्शन लीगली नहीं ले सकता X के खिलाफ। कौन? Y। Define unambiguous and create in nature. Offer must be certain as certified in section 29. It must be unambiguous means that the thing offered must be clearly specified. मतलब जो भी ऑफ़र हम दे रहे हैं वो क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए भी वो क्या ऑफ़र है, किसके बारे में, उसका नेचर है वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। It must distinguished from invitation to offer. The offer makes a person to enter into a legally binding contract, whereas invitation to offer invites the person to enter into contract. For example, a suit was displayed with a price tag in a shop. There is not a offer, it is invitation to offer. इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि ए ने सूट को डिस्प्ले कर दिया, जैसे हम मॉल में जाते हैं प्राइस टैग के साथ कुछ भी जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो लगे होते हैं, वो दिस इज़ नॉट अ ऑफ़र, इट इज़ इनविटेशन टू ऑफ़र। वो ऑफ़र नहीं है, वो आपको इनविटेशन दे रहे हैं, आप उनको बाय करना चाहते हो या नहीं ये आपके ऊपर है। इट इज़ कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफ़र, मतलब वो क्लियर होना चाहिए। Fifth one, it may be general or specific in nature. The offer can be given to public at large in general by advertisement in newspaper etc. or it can be given specific person too. जो ये ऑफ़र होती है दो तरह के नेचर की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल वो होते हैं जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है और स्पेसिफिक ओनली फॉर दोज हु आर स्पेसिफिक, वो होते हैं जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए ऑफ़र होती है। टाइप्स ऑफ ऑफ़र, ऑफ़र 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ जनरल ऑफ़र, सेकंड वन स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफ़र भी कहते हैं इसको, एंड थर्ड वन इज़ क्रॉस ऑफ़र, फोर्थ वन इज़ काउंटर ऑफ़र एंड लास्ट वन इज़ स्टैंडिंग और ओपन ऑफ़र। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जनरल ऑफ़र. It is an offer made to public at large and anyone can accept at desire act.
ये जो ऑफ़र है जनरल ऑफ़र, इनको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये सभी के लिए है। जैसे कि अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट दे दी न्यूज़पेपर में या कहीं सोशल मीडिया पे, मतलब वो जनरल ऑफ़र है, भी कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उसको। When an offer made at large or in public or in general, this offer is known as general offer. It can be accepted by any individual or public at large, whoever is interested in the offer offered. जो भी इस ऑफ़र में इंटरेस्टेड है वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड जनरल ऑफ़र। ਇਹ ਆਫਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਫਰ। The offer which is made to an individual or to a specific group of individual is said to be specific offer. It can be accepted by that individuals or that group of individual. It is also known as special offer. ਇਹ ਆਫਰ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਹੀ ਆਫਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬੀ ਨੂੰ, ਬੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰਤਾ। Third one is cross offer. When two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, it is called cross offer. ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਆਫਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਆਫਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ सिमिलर ऑफर एक्सचेंज करती है उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। फोर्थ वन इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर इज also called conditional acceptance, where the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to modification and variation in the terms of original offer. He is said to have made a counter offer. बेसिकली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਊ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਆਫਰ। मीन्स पुरानी ऑफर को हटाकर न्यू ऑफर दी जाए, दैट इज़ कॉल्ड काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर की आप एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी नूं कहा बिजनेस स्टार्ट करांगे, ये टर्म्स एंड कंडीशनस ने। दैन बी ने कहा बाद विच मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशनस नहीं मनदा, कुछ आ टर्म्स एंड कंडीशनस तुसीं हटा दवो, दैन आपां कॉन्ट्रैक्ट कर लवांगे। मतलब पहला ऑफर कुछ होर सी, बाद दे विच कुछ टर्म्स एंड कंडीशनस हटा दित्तियां उन्होंने, तो उन्होंने न्यू ऑफर रख दी। इट इज़ कॉल्ड काउंटर ऑफर। चलो इनको अब हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। ए ने बी को बोला कि हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, इस बिज़नेस के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन बी ने बाद में बोला कि मैं इन कुछ कंडीशंस जो आपने बताई है मैं उनको नहीं मानता, आप इनको हटा दीजिए और ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है इसको ऐड कर दीजिए, देन हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। इट इज़ कॉल्ड काउंटर ऑफर। मतलब भी उन्होंने पुरानी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी ऑफ़र के रिलेटेड वो हटाकर कुछ न्यू ऐड कर दी है। फिफ्थ वन इज़ स्टैंडिंग, कॉन्टिन्यूइंग एंड ओपन ऑफर। Offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as open offer. For example, tender that are invited for supply.
ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਓਪਨ ਆਫਰ। Acceptance, a proposal or offer is said to have been accepted when the person to whom the proposal is made specifies his assent to the proposal to do or not to do something. Section 2B said that basically acceptance वो होती है जो हम एक्सेप्ट करते हैं कोई भी ऑफ़र को जो हमें ऑफ़र की गई है। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ ऑफ़र, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र एंड टाइप्स ऑफ ऑफ़र। ये क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स में भी आ सकता है इन शॉर्ट नोट, जैसे कि एसेंशियल्स बताएं वैलिड ऑफ़र के क्या होते हैं, और इनमें से टाइप्स भी आ सकते हैं ऑफ़र की। सो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जो बेसिक है वो क्लियर हो। ये देखो जो टाइप्स ऑफ ऑफ़र थे वो आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं। काउंटर ऑफ़र बताएं क्या होती है, जनरल ऑफ़र क्या है, क्रॉस ऑफ़र क्या है। सो आपको ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और एट लास्ट में कॉन्क्लूज़न देना मत भूलिए, क्योंकि उनका 1 मार्क आपको मिलता ही मिलता है। पहले आपको कोई भी क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन देनी है, देन आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना है इन लॉन्ग क्वेश्चन। देन जो डायग्राम ड्रॉ किया है जैसे ये रहा, ये आपको बनाना ही बनाना है। देन उनको अलग अलग करके एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप इसमें एग्ज़ाम्पल देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्ज़ाम्पल देना इनमें मत भूलिए CLE में। और एट द लास्ट आपको कंक्लूज़न लिखना है, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ये मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।